Good morning. Hope you all are good. This is our English class and we are doing one and many in this class. Yesterday we have done some concept of one and many, but today again I am going to teach you about the basics of one and many. I will teach you that how can you use s, es or ies to make anything similar to plural. कैसे singular को plural आप बना सकते हो with the use of s, es or ies. So now we will start with some letters, students. You should know these things first. After that you can use s, es or ies very easily. So these are letters. So students, you should know that how many letters are there. 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. So basically we have 26 letters. हमारे 26 letters होते हैं, right? Why I have written all these letters here? Because now we will learn that what are vowels and what are consonants. Because without vowels and consonants we are not able to learn that how can we use IES in plural. कि plurals में हम IES को कैसे use कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता होगा that what are vowels and what are consonant, तो हम कर नहीं पाएंगे. This is the reason that we are learning these here. So students, first of all I will talk about vowels. मैं vowels की बात करती हूँ, तो I think you all know that how many vowels are here. Vowels होते कितने हैं? 5 vowels are here. 5 vowels. कितने vowels होते हैं? 5. कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? A, E, I, O, U. Only 5 vowels are there out of 26 letters. So 26 letters में से 5 vowels होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. You all should know that there are 5 vowels and they are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. And rest of these letters are called consonant. Except these 5 A, E, I, O, U, rest of these letters are consonant. A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी letters है वो सारे क्या हैं? Consonant. Just like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All these are consonant. C-O-N, consonant. If out of 26, 5 are vowels. So how many are consonant? 21. Right? 21 are consonant and 5 are vowels. And how many vowels we have? 5. A, E, I, O, U. Rest of all the letters are consonant. तो consonant कितने हो गए हमारे पास? 21 are consonant and 5 are vowels. So you all should know that what are vowels and what are consonant. Who are vowels, who are consonant, क्योंकि इनका यूज हमें यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स. ओनली दिस इज द रीजन कि मैं आपको ये समझा रही हूँ. Now first of all I'll talk about ES, that where we will use ES. ES हम कहाँ यूज करेंगे? It's like if I'm writing one word, class, CLASS. I have written one class. मैंने क्या लिखा? One class. एक class. Now I have to make this class to many classes. मुझे इस एक class को बहुत सारी classes में convert करना है. तो मैंने क्या बोला? Classes. Many बनाने के लिए students हम S, ES, IES लगाते हैं. Right? But you should know that where we use S, ES or IES. So one class. So many क्या होंगी? Obviously classes होंगी. But now we don't know that what should we use here, S, ES or IES. So that we will learn now. Now we are talking about ES. हम ES की बात कर रहे हैं. Whenever you find, तब भी आप किसी भी word के last में क्या ढूंढेंगे? Double S. Whenever you find double S at the end of any word,
ऑलवेज यू विल यूज ES टू मेक इट मैनी। क्या समझाया है? तब भी किसी वर्ड के पीछे आप डबल S पाएंगे, तब भी आपको डबल S मिलेगा, यू विल यूज ES टू मेक दैट वर्ड मैनी। उस वर्ड को मैनी बनाने के लिए यू ऑलवेज यूज ES। क्लासेस, राइट? वन क्लास, मैनी क्लासेस। आई एम टॉकिंग अबाउट ES। मैं ES की बात कर रही हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ ES? वेर वी यूज ES, हम ES को यूज करते कहाँ हैं, राइट? सो वन क्लास, मैनी क्लासेस। वेन एवर यू विल फाइंड आउट लास्ट लेटर, जब भी आप लास्ट लेटर फाइंड आउट करोगे डबल S किसी भी वर्ड का, यू ऑलवेज यूज ES टू मेक दैट वर्ड मैनी। उस वर्ड को मैनी बनाने के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? ES। नाउ स्टूडेंट, यू ऑल हैव टू रिमेम्बर सम वर्ड्स इन योर माइंड। आपको याद रखने हैं कुछ, कीप इट इन योर माइंड दीज वर्ड्स जो मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। जस्ट लाइक डबल S, CH, SH, X and O. Whenever you all will find these words at the end of any word, you always use ES to make it many. जब भी आप इन सब वर्ड्स को पाएंगे किसी भी वर्ड के पीछे, ये जो दो लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं डबल S, CH, SH, X, O, इन लेटर्स को तब भी आप किसी वर्ड के पीछे आप पाएंगे। सो व्हाट यू विल यूज? यू विल यूज ES टू मेक इट प्लूरल। जस्ट लाइक if I will write here one box, वन बॉक्स एंड टू क्या होंगे? ऑब्वियसली बॉक्सेस होंगे, बट नाउ वी आर कंफ्यूज दैट व्हाट शुड बी यूज हियर, ES, IS और S। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल, वर्ड के पीछे क्या है? X है। मैंने कुछ वर्ड्स बताए आपको, डबल S, CH, SH, X, O। वर्ड के पीछे क्या है? लास्ट लेटर क्या है? X है। इट इज वेरी इजी। X है तो उठा के क्या लगा दो? सिंपली ES लगा दो। अगर आपके पास है ग्लास, अगर मैंने आपको बोला ग्लास, डबल S भी है, उठा के सीधा क्या लगाना है? मैनी ग्लासेस, राइट? तो मैंने अभी क्या समझाया? whenever you will find these letters at the end of any word, you always use ES to make that word many या plural। उस वर्ड को हमेशा प्लूरल बनाने के लिए आप क्या लगाओगे बेटा? ES लगाओगे। इट इज वेरी इजी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ES कि हमें कहाँ ES यूज करना है। ठीक है, जब भी आप इन वर्ड्स को पाएंगे, कीप इट इन योर माइंड ऑल दीज वर्ड्स एवरीवन, इनको माइंड में रखिएगा। डबल S, CH, SH, X और O, तब भी आपको किसी भी वर्ड के पीछे दिखाई देगा, यू ऑलवेज यूज ES। आई एम टॉकिंग अबाउट ES कि प्लूरल बनाने के लिए आप वहां क्या लगा दोगे? ES। Now we'll learn the use of IES, that where we will use IES, where we should use IES to make any single word to plural। किसी भी सिंगल वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए IES हम कहाँ यूज करते हैं? Now what I have written on the board? Body, 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 and here I have written day. So what is the similarity in these words? That there is one similarity, that this word has Y at the end and this word also has Y at the end. So this is the similarity in these both words, body and day. Okay, now what we have to see, whenever we find Y letter at the end of any word, तब भी हम किसी वर्ड के पीछे Y को फाइंड आउट करेंगे। After that we will check that what is before Y। क्या समझाया मैंने? तब भी हम किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर हमें Y दिखता है कि लास्ट में तो Y है, so what we have to check? We have to check the letter before Y। हमें वो लेटर चेक करना है जो Y से पहले है, बिफोर, एंड नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट आफ्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर, पहले।
क्या बोला है मैंने? whenever we find out the last letter of any word is y, we have to check the letter before y. हमें y से पहले वाला लेटर चेक करना है कि वो वॉल है या कॉन्सोनेंट है. And I taught you in the starting of my lecture that what is vowel and what is consonant. So that's why I taught you vowels and consonant, because now we will use vowel and consonant in this concept. So अगर y से पहले आपको वॉल दिखता है, VOWEL वॉल दिखता है. वॉल कौन होते हैं हमारे? AEIOU. अगर आपको y से पहले वॉल दिखता है तो आप हमेशा क्या यूज करोगे? s यूज करोगे, हमेशा s यूज करोगे. अब आप सोचोगे मैम तो IES की बात कर रही है, लेकिन मैं वो भी समझा रही हूँ तो आपको ध्यान से समझना है. मैंने क्या बोला है? अगर y से पहले कभी भी वॉल आता है तो आप s यूज करोगे, और अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आप IES यूज करोगे. सो now we will check before y is D. ये तो ना A है, ना E है, ना I है, ना O है, ना U है. It means there is no vowel. It means D is consonant. तो D क्या है? consonant है. अभी मैंने आपको बताया अगर consonant होगा तो you will use IES. तो अगर consonant है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? IES. अब वन बॉडी है तो बहुत सारी क्या बनेंगी? बॉडीज. अब ध्यान से देखिएगा बॉडीज को लिखेंगे कैसे. बच्चे क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे. नो दिस इज इनकरेक्ट. आपको क्या करना है? अगर आपको IES यूज करना है और y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हाउ कैन वी राइट बॉडीज? हम बॉडीज को लिखेंगे कैसे? कैसे लिख सकते हैं हम? वी विल कट दिस y. हम इस y को कट कर देंगे. अगर हम IES यूज कर रहे हैं तो वी विल नॉट यूज दिस y. इंस्टेड ऑफ दिस y वी विल यूज IES. BODIES बॉडीज. समझ में आ रहा है? y से पहले कभी भी अगर कॉन्सोनेंट मिलता है आपको तो आपको क्या करना है? IES यूज करना है. और वो IES आप कब यूज करोगे? इंस्टेड ऑफ y you all will use IES. Whenever you will use IES there is no need to write y again in that word. उस y की जगह आप सिर्फ क्या लिख दोगे? IES. Okay, now come to this word DAY. Before y there is vowel. बिफोर y क्या है? वॉल. एंड विद वॉल वी ऑलवेज यूज AEIOU. तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम? वॉल क्या है हमारा? AEIOU. वॉल के साथ अगर y से पहले कभी भी आपको वॉल मिल जाए वहां पे IES नहीं लगेगा. सीधा उठा के क्या लगाना है? S. मैनी डेज. वन डे, मैनी डेज. क्या समझाया मैंने? मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आई एम रिपीटिंग अगेन दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स. Whenever you will find out the last letter of word y, after that you will check the letter before y. और अगर लेटर जो बिफोर y से जो पहले लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट मिलता है तो आप क्या यूज करोगे? IES. और अगर आपको वो वॉल मिलता है देन यू विल यूज S. राइट? नाउ वी हैव पार्टी, हैंकी, ट्रे. And I will say that make it many. एक पार्टी, बहुत सारी parties. Now, what is the common thing in all these words? Y, Y, Y. Now we have to check letter before Y, letter before Y, letter before Y. There is T. So what is T? T is consonant, right? So with Y there is consonant. So what we will use to make it many? IES. Y के साथ consonant तो हम IES यूज करके इसको many बनाएंगे. तो PART. नाउ देर इज नो नीड टू राइट y. हम सीधा क्या लिखेंगे? IES. पार्टीज. राइट? y से पहले कॉन्सोनेंट था इसलिए हमने IES यूज किया, y को नहीं लिखा. अगेन वी हैव हैंकी. नाउ अगेन वी हैव कॉन्सोनेंट बिफोर y. सो व्हाट वी विल यूज हियर? IES. HANKIES. If we are using IES to make any word many, अगर किसी भी वर्ड को many बना रहे हैं, so we will not write y. हम वहां पे y नहीं लिखेंगे, सिर्फ IES लगाकर उसको क्या बना देंगे? many. Now come to next word. Before y there is wall. It means what we will use? We will use only S to make it many. TRAYS. Right? I think now you all have understood the concept of IES with Y.
Now we will learn about the use of S. So there are some words: car, book, cup, rat, pen. Right? Now मैंने आपको दो चीज सिखाई है स्टूडेंट्स कि आपको क्या देखना है, एस डबल एस, ये सब सिखाया था, एस डबल एस सी एच एक्स ओ आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, लेकिन लास्ट में वाई है तो आपको क्या करना है, और अगर आपको डबल एस एस एक्स ओ सी एच मिल जाता है देन व्हाट यू हैव टू डू। सो आपको सबसे पहले ये देखना है, यू हैव वन वर्ड सी ए आर, कार। एट द एंड यू हैव टू सी दैट देयर इज नो वाई, तो आई एस तो खत्म ही हो गया, राइट। अगर वाई होता तो एस भी आ सकता था, तो आपको देखना पड़ता। ना यहाँ पे एस एच है, ना या सी एच है, ना एक्स है, ना ओ है, ना डबल एस है। सो अगर ऐसा कुछ भी ना हो, सो बेसिकली आपको यहाँ क्या यूज करना है, सिंपल यू विल एड एस, कार्स, राइट। अगर आपको वाई ना दिखाई दे, अगर आपको डबल एस एस एक्स ओ सी एच एस एच ना दिखाई दे, आंख बंद करके एस लगा दीजिए, क्या हो गया, कार्स। अगेन यू विल लुक हियर, books, there is no double s, there is no sh, there is no ch, there is no x, there is no o, there is no y. So what will you use here, books, simple, many books. Again cups, no sh, no ch, no x, no o, no double s, so and no y, so cups, c u p s, it is very easy. Rat, again no sh, no ch, no x, no o, no y, so what we will write here, rats, many rats. And same with this, many pens. और अगर मैं यहां लिख दूं TRAY, now there is Y. Now there is Y. Now we are little confused that what should we use here. We should use S और IES, क्योंकि ES तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ES कहाँ आएगा, जहां CH SH O X डबल एस होंगे, और यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, बट देयर इज वाई। नाउ वी हैव टू एनालाइज दैट व्हाट शुड वी यूज हियर, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें यहाँ यूज क्या करना है। सो आप क्या देखेंगे कि वाई से पहले क्या है, वॉल है, इट मीन्स हमको सीधा एस लगा के इसको फिनिश कर देना है, राइट। सो today we have discussed about the basics of S, ES and IES. I think now you all know that where we have to use S, where we have to use ES and IES. So that's it for today, students. See you in the next class.